Good morning everyone. My name is Deepak Sharma. I am PGT English from Bhavrao Devras Saraswati Vidya Mandir. Dear students, we are going to study a very important chapter of our book Hornbill. And what is the name of the chapter? The name of the chapter is Landscape of the Soul. It's a beautiful chapter and today I will teach you the part 1. We have divided this chapter into few parts and we will study it part wise. So the part 1, first of all, have a look at this. What is this? This is basically a landscape, right? Landscape means, a sight of a beautiful scenery. It can be natural, right? So we are going to study about the landscape. First of all, I am telling you what is the introduction of the chapter. As it is written, this chapter is written by Nathalie Travaroy. The chapter is about how different the Chinese art of form is. In this chapter, the writer is telling you what is the difference between Chinese paintings and Western paintings. So that is very important. We will study this from the European art form. So two art forms की बात कर रहे हैं, Chinese art form and European art form. How they are different from each other. It's been discussed. The writer uses two stories to make a contrast. In this particular chapter, the writer will share two stories with you. He will tell you what exactly is the contrast. Contrast means comparison. Comparison between Chinese paintings and European paintings. इसके बाद European art is about reproducing an actual view, whereas Chinese art is about not creating a real landscape. In European painting what happened? उनका जो लक्ष्य होता है, उनका जो उद्देश्य होता है, उनका जो मकसद होता है किसी पेंटिंग को, वो एक एक्चुअल व्यू को, मतलब एक बिल्कुल सच्चे व्यू को वो दिखाना चाहते हैं, एक असली चीज को दिखाना चाहते हैं. जबकि जो चाइनीज आर्ट है वो क्या है, एक रियल लैंडस्केप को नहीं क्रिएट करते, वो ठीक से उसको नहीं बताते हैं, उनका जो डिस्क्रिप्शन है वो प्रॉपर नहीं होता है. इसके बाद व्हाट ही वांट्स, यूरोपियन आर्ट इज एन आर्टिस्ट वे टू लेट व्यूअर्स शो एग्जैक्टली. यूरोपियन आर्ट में क्या होता है, आर्टिस्ट का अपना तरीका होता है व्यूअर्स को दिखाने का कि एग्जैक्टली वो दिखाना क्या चाहता है. व्हाट ही वांट्स देम टू सी इन द लैंडस्केप. इसके बाद चाइनीज आर्ट इज द आर्टिस्ट स्पिरिचुअल एंड इनर वॉइस. चाइनीज आर्ट में क्या होता है, आर्टिस्ट की इनर वॉइस होती है, उसकी अंतरात्मा होती है, उसके अंदर की आवाज होती है, उसका एक स्पिरिचुअल आध्यात्मिक जो उसका नेचर है वो उसके अंदर नजर आता है हमको. इसके बाद कहते हैं वेयर यू कैन ट्रेवल फ्रॉम एनी पॉइंट. उस पेंटिंग को देखने के लिए आपको खास जगह खड़े होने की, एक डिफरेंट आउटलुक रखने की जरूरत नहीं है. आप जहां पे खड़े हैं, जहां से देख सकते हैं, जैसे समझ सकते हैं, यू कैन एंटर इन द पेंटिंग. दैट वुड बी अ सेपरेट एंगल. सो इट हैपेंस विद द चाइनीज पेंटिंग्स. सो दिस इज समथिंग व्हाट द राइटर इज अबाउट टू टेल यू. इसके बाद the viewer creates a path for their imagination, and in this painting it is viewer who makes his own outlook. He is having his own opinion that how he can enter in the painting. So comparison is being made between European painting and Chinese painting. Okay, so that in this particular paragraph has been told. Next, main characters. For a chapter it is very important that you get to know about the main characters. There are not so many characters in this chapter, but two very important characters. So I am telling you about them. The first character is Vo Daozi. Okay, what is the name? Vo Daozi, a painter who lived in the 8th century. This painter used to live in the 18th century basically. By mistake I have written 8th. His painting was a landscape and he was commissioned by Tang Emperor Xuanzang. This is Chinese name. So Xuanzang is a Chinese name. तो एक एम्परर होते थे जिनका नाम था जुआजंग. उन्होंने क्या किया, कमीशन किया. कमीशन मीन्स उसको ऑर्डर दिया, उसको कॉल किया. किसको कॉल किया? वू दाउजी को. और उनसे कहा आप एक पेंटिंग बनाइए, राइट. तो वू दाउजी ने उस पेंटिंग को बनाया एंड ही पोर्ट्रेट दैट पेंटिंग ब्यूटिफुली. एंड आफ्टर दैट व्हाट ही डिड, ही कवर्ड दैट पेंटिंग एंड ही सेड ओनली किंग कैन सी माय पेंटिंग. So whenever king used to come, he used to see that painting, he used to enjoy it, he used to appreciate it, he used to praise it. Okay, after that what happened, you will get to know about this in the chapter. The other very important character, that is Quentin Matsys, master blacksmith who fell in love with the painter's daughter.
क्विंटन मैट्सेस क्या है? ये एक ब्लैक स्मिथ हैं, एक लोहार हैं, लोहे के सामान को बनाने का ये काम करते हैं। तो इनको प्यार हो गया। किससे प्यार हो गया? एक पेंटर की बेटी से प्यार हो गया। As he knew, the girl's father would not accept a guy with such a profession. वो ये भी जानते थे कि वो ब्लैक स्मिथ हैं और जो लड़की के पिता हैं वो कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे कि उनकी बेटी किसी ऐसे व्यक्ति से प्यार करे या शादी करे जो एक लोहार है, क्योंकि वो खुद एक पेंटर है। तो वो तो चाहते भाई उनकी बेटी किससे प्यार करे? उनकी बेटी हमेशा प्यार करे एक पेंटर से, ताकि उनको उनके काम में सहयोग मिल सके और दे बोथ माइट हैव द सेम काइंड ऑफ ओपिनियन। He painted a fly with such perfection that he was accepted as an apprentice at the studio. So what he does to impress his father-in-law, अपने ससुर जी को या कह सकते हैं होने वाले ससुर जी को इम्प्रेस करने के लिए उन्होंने क्या किया? वो उन्हीं के स्टूडियो में घुस गए और उनके ससुर जी ने एक पेंटिंग बनाया हुआ था, तो उस पर उन्होंने एक फ्लाई को, एक मक्खी उन्होंने पेंट कर दी। वो इतना रियलिस्टिक लग रही थी, इतनी सुंदर लग रही थी कि जो लड़की के पिताजी हैं वो आए तो उन्हें पेंटिंग पे से मक्खी को उड़ाना पड़ा। जब उड़ाया तो वो बहुत इंप्रेस हुए, क्योंकि जो मक्खी है वो इतना रियलिस्टिक था। तो उन्होंने अपने यहाँ उसको एज एन अप्रेंटिस रखा। किस रूप में रखा? उन्होंने अपने यहाँ उसको रखा कि वो आके मेरे यहाँ काम सीख सकता है, पेंटिंग सीख सकता है। Right? So these are the two very very important character. Now I would like to tell you about the theme of this chapter. Theme of any chapter is very very important. Theme is basically the soul of the chapter. In this story, Landscape of the Soul, the author presents two instances of painting to show the beauty and difference in the perception of painter. इस पर्टिकुलर चैप्टर में लैंडस्केप ऑफ द सोल में जो ऑथर हैं, जो लेखक हैं, वो बताते हैं दो विचारधाराओं को जो दोनों ही पेंटिंग के बारे में हैं, लेकिन दोनों अलग अलग हैं। द फर्स्ट इंस्टेंस इज अबाउट अ चाइनीज पेंटर। पहला जो वो उदाहरण देते हैं, पहली जो वो बात करते हैं, वो एक चाइनीज पेंटर के बारे में है, हु पेंट्स अ लैंडस्केप विद एट मोस्ट प्रिसिजन फॉर द एम्परर। वो एक पेंटिंग को पेंट करते हैं, किसके लिए करते हैं? राजा के लिए करते हैं, एम्परर के लिए करते हैं। द एम्परर अप्रिशिएट्स द आउटर ब्यूटी ऑफ द पेंटिंग बट द आर्टिस्ट रिवील्स हिम टू द ट्रू मीनिंग ऑफ हिज वर्क। जो पेंटर हैं वो राजा को जब तस्वीर दिखाते तो राजा बहुत तारीफ करते हैं तस्वीर को बाहर से देखकर, लेकिन पेंटर चाहता है कि वो इस तस्वीर की अंदर आंतरिक खूबसूरती को पहचाने। As the story proceeds, जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, it conveys that the emperor may rule within the kingdom, but the artist is the only one who nails his painting within. तो वो कहते हैं भाई जो राजा है वो किसी साम्राज्य पर, किसी राज्य पर शासन कर सकता है, लेकिन इस पेंटिंग को देखने के लिए उसे आर्टिस्ट का नजरिया चाहिए, उसकी सोच कैसी होनी चाहिए? एक पेंटर की होनी चाहिए। तो ये वो कहते हैं whereas the emperor is unable, he is able to travel in his painting, ताकि वो पेंटिंग में ट्रेवल कर सके। Whereas the emperor is unable, it shows that the painter is able to imagine his painting with his perception. जब एम्परर साहब हैं, राजा साहब हैं, वो ठीक से समझ नहीं पाते उस पेंटिंग को, लेकिन पेंटर अच्छे से इमेजिन कर सकता है, कल्पना कर सकता है कि वास्तव में उस पेंटिंग का क्या हुआ। But the emperor can only see what lies before the eyes and not within. राजा तो केवल देख सकता है जो उसे सामने नजर आ रहा है, वो उस चीज को बिल्कुल नहीं देख सकता जो पेंटिंग के अंदर है। The second instance is about a blacksmith called Quinton Matsis. यहाँ पे वो बात करते हैं, दूसरा जो उदाहरण देते हैं वो बताते हैं एक ब्लैकस्मिथ की, एक लोहार की, जिसका नाम है क्विंटन मैट्सिस. He falls in love with the painter's daughters and realizes that the painter will never accept a blacksmith to be son-in-law. उन्हें प्यार हो जाता है, मैंने आपको भी बताया था इनके बारे में. किससे प्यार हो जाता है? पेंटर की बेटी से. और वो जानते हैं कि जो पेंटर साहब हैं वो कभी एक लोहार को अपना दामाद स्वीकार नहीं कर सकते. इसके बाद क्विंटन स्नेक्स इनटू द पेंटर्स स्टूडियो. जो क्विंटन है पेंटर के स्टूडियो में घुस जाते हैं. ये बिल्कुल वही बात है जो मैंने आपको बताई. वो पेंटर के स्टूडियो में घुसते हैं, एक मक्खी को पेंट करते हैं. पेंटर साहब आते हैं, ही ट्राइज टू फ्लिक्स इट ऑफ, मक्खी को उड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फाइनली क्या होता है? मक्खी उड़ती नहीं, क्योंकि वो तो एक पेंटिंग थी. वो बहुत इंप्रेस होते हैं और फाइनली वो क्या करते हैं, अब उसको अपने यहाँ रख लेते हैं. ही इवेंचुअली मैरिज हिज बिलव्ड एंड बिकम्स अ फेमस पेंटर. इसके बाद जो क्विंटन है वो एक बहुत ही फेमस पेंटर बनते हैं, शादी करते हैं अपनी उस लड़की से, उस प्रेमिका से जिसको प्यार करते हैं. द चैप्टर मेक्स यू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ इमेजिनेशन.
ये चैप्टर आपको बताता है कि कल्पना शक्ति की वैल्यू क्या होती है एंड हाउ पेंटर्स हैव डिफरेंट परसेप्शंस। ये भी बताता है कि पेंटर्स की अपनी अपनी धारणाएं कैसी होती है, अपनी अपनी सोच कैसी होती है। द आर्ट फॉर्म नीड नॉट टू बी व्यूड अकॉर्डिंग टू अ सिंगल परसेप्शन। जब आप किसी भी आर्ट को देखें तो एक मन में एक धारणा लेकर नहीं देख सकते, उसके बहुत सारे नजरिए हो सकते हैं, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। There can be many ways to imagine one single painting. एक पेंटिंग को देखने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बहुत सारे तरीके से आप उसकी कल्पना भी कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको पढ़ाया किसके बारे में? लैंडस्केप ऑफ द सोल। मैंने आपको इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स बताए, मैंने आपको बताया साथ में कि इसके अंदर इसकी थीम क्या है। थीम किसी भी चीज़ की सोल होती है, किसी भी चैप्टर की। सो आई होप यू विल स्टडी दिस। इसको रीड करिए, समझने की कोशिश करिए। थैंक यू सो मच।